happy that we have been able to bring in some quality speakers, and at the same time we are thankful to the speakers that they spared their valuable time for us. I can see we don't have we have a little less participation right now. I hope people will be joining in a while. And um, it is indeed our pride, and it's our proud privilege that these resource persons who are so busy and so engaged and involved in their uh, professional and personal life, they spare so much of time, and they're really particular about the time. Already Imtiaz has joined us, but I'm sure, as I can see, more number of participants are joining, so that's why I'll request Imtiaz that we'll be starting in a few minutes, in 2 3 minutes, so that more participants join us. Maybe they might be joining as it's early morning, so we'll hopefully get a view of what institutionalization of a non-formal, of an informal sector can do. That is very phenomenal, and I don't have words to express how beautifully a change has been made in Madhya Pradesh of our country, and how impactful all this has been since all these years Sarthak Sansthan has been working. And the mere thought behind bringing Imtiaz Ali Saab on this platform is that it is not essentially the responsibility of the government only to bring about change. It is responsibility of anybody, of everybody, as Samir Joshi said yesterday, rightly called it, that it is responsibility of anyone, everyone, and someone to summarize all this into a common platform so that the change can be felt, so that the real sense of waste management can be felt practically on ground. And the intention should be that we have to bring a change. We have, it is not, it should not be intended that we will look forward to the government for funds, for resources, for, and we'll start cursing the policies, we'll start cursing the people, we'll start cursing the system. That's not going to help. And if there is a resolve, if there is a strong feeling that no, whatever the circumstances are, they'll stay like that, and we have to make possible of something very significant in the same context, in the same sphere of social life in which we are living. And that is possible, that has been made possible by visionaries, by some great souls, and by the determination of some great souls like Imtiaz Sahab. We have been associated with Imtiaz Sahab since long, and every time we hear him, every time I feel that and literally, there are people there who are selflessly and relentlessly working. That's why our environment could see some change, our country could see some change. It is participation of us who have been referred to as everyone by Samir Joshi said yesterday. It is our responsibility to engage and involve ourselves. And there will be leaders like Imtiaz who will lead a change. We only have to be the change makers at our front. We have to mobilize. If it's a common saying that if you can't be a star, try to be a candle at your home. So why not we dedicate ourselves, our thoughts, our sufficient time for a cause that will be significant to the purpose of safeguarding our environment, for making human lives better, and for a better cause of having creating some good impact
to this world and to the humanity as a whole. I am extremely thankful to all of you that you have joined and you are seriously looking at the inputs which you can put on and make possible that some change is felt. I'm thankful to all of you. I think now appreciable people, number of people have joined. I before I can hand it over to Imtiaz Saab, I must say that I don't have words to express the feelings which I have personally for Imtiaz Saab, but I'll just give you a brief. Imtiaz sir is associated with, is the founder of NGO called Sarthak Sanstha. It is based out of Bhopal. Um, it's primarily focused on non-recyclable portion of the plastic waste, and it has been striving and trying, and it has done it. That they have brought in some economic value to the waste which was otherwise thrown out, which was of no use. Sarthak Sanstha Bhopal was founded by Imtiaz Ali Sahab, who is an ex-senior research officer, CVP, Norana Academy of Administration, Government of MP. So that's why I was saying that you can be whatever you are professionally doing, and then you can be a change maker. It's not essential that we should be associated with an NGO, or we should have a background like that. You can be an officer and a research officer and start an NGO and make change. The only thing is the determination. The NGO Sarthak Sanstha has been doing outstanding work in developing a sustainable mechanism for solid waste management and plastic waste management. NGO has started state-of-art collection and transfer centers for waste management now, referred to as Bhopal model. The Bhopal model, which was actually the brainchild of Sarthak and Imtiaz Ali, is now replicated not only in India but number of countries out of India, and Imtiaz is always a busy person helping out everybody. And he's so humble and so down to earth that he comes at the onset of any call everywhere. In recognition of his significant contribution in the socio-economic upliftment of rag pickers, which you will see in the presentation, and he has been engaging and institutionalizing them as Sarthak Karmis through self-help groups, affording them a certain measure of social security. They have got identity cards. And the best part is that he has been caring for them, for their livelihood, for their children, for their health, bringing them to schools, bringing them good health care, giving them affordable living standards. And he was conferred Professor Yashwantrao Kelkar Yuva Puraskar in 2015. Also, he has run Best Entrepreneur Award for recycling of plastic waste. He is on the panel of government think tanks. He is practically invited everywhere, wherever a person thinks in India or abroad about making change in plastic waste management or effective models of plastic waste management. Imtiaz sir is always called there, and he is always ready to give his inputs. We have been associated with him. I personally have seen how passionate he is. We used to invite him to various sites wherever we used to have these awareness programs. He will come, he'll engage with NGOs, he'll engage with the municipal corporations, he'll engage with good, thoughtful people, and he'll be always busy there. And of course, we are thankful and indebted to him that he has always responded to our call and has always spared time for being a resource person, or being putting forward his able thoughts, his wise thoughts whenever we have called him for any interaction with the audience. And I must thank him for being present today
and I just want to inform him that the audience here is faculty members of engineering college around the entire country, and they have joined us from different corners of the country, and we are happy that we have got such a beautiful mixed gathering of thoughtful minds, and we are hopeful that they'll be benefited by your experience, your exposure, and your good work that you have been putting forward in this field, which is related to the core idea of this faculty development program, that is plastic waste management, a practical model which has been tested, not only conceived, which has been tested and has been gaining immense ground. I welcome you on behalf of the organizing committee and welcome you on my personal behalf. I'm thankful to you. Please, sir, you can start your presentation. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जो आज जा रही है, पिछले 15 दिन के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से एक नई एसओपी जारी हुई है और 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने भोपाल में वर्ष 2005 और 6 से काम करना शुरू किया था। और उस समय पे ना तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई ऐसे नियम थे, ना ही मध्य प्रदेश शासन के कोई ऐसे नियम थे। तो इन नियमों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, साथ ही सभी राज्यों में इसको लागू करवाना, इसके सतत प्रयासों को ध्यान में रखते हुए 2005 और 6 में जब ये भोपाल मॉडल हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो उस समय जो प्लास्टिक कचरा उठाने की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जो भी हमारे आसपास जो कचरा बीनने वाले, कचरा चुनने वाले या कचरे का काम करने वाले समुदाय हैं, जिनको हम लोग रैक पिकर्स, वेस्ट पिकर, कचरा चुनने वाला, कचरा बीनने वाला, इन नामों से जानते हैं, ये अपने इन प्लास्टिक कचरे को सुबह से निकलकर डिफरेंट कचरे के स्पॉटों पर, ट्रांसफर स्टेशनों पर या जहां भी टंचिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहां पर जाकर उसमें से अपने काम की चीजों को निकालते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिससे इन कचरा बीनने वालों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ष 2006-7 के अंदर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आए, तो जितने भी ऐसी रिसाइकलिंग यूनिट थी कि जो 40 से 20 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन बनाती थी, उन सारे रिसाइकलिंग यूनिट्स को जो है वो बंद कर दिया गया, जिससे इन कचरा बीनने वाले परिवारों के सामने, कचरा चुनने वाले परिवारों के सामने और जो छोटे छोटे स्क्रैपर्स थे, जो कबाड़ी वाला थे, इन सबके सामने बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो गई। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जो भी कचरा बीनने वाले प्लास्टिक को बीनते थे, वो प्लास्टिक को इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को बेचते थे और एक कबाड़ी वाला उस कचरे को रिसाइकलर्स को या जो आगे की यूनिट्स थी उनको बेचते थे, जिससे ये पूरा कचरा व्यवस्थित तौर पर रिसाइकल हो जाता था। लेकिन जैसे ही नियम आए, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल ने ऐसी वो तमाम इकाइयां, एक ही यूनिट जो कि 20 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक रिसाइकल करके उसके कैरी बैग्स बनाते हैं, उसको रिसाइकलिंग करते हैं, वो व्यवस्था जो थी लगभग समाप्त हो गई। उसका परिणाम ये निकला कि जहां भी कचरे के ढेर थे, वहां पर प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में दिखने लगा और इन कचरे के जलने से फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन जो जहरीली गैसेस थी,
इरफान साहब, ऑडियो और वीडियो मेरा क्लियर है, मैं कंटिन्यू करूं? और जी सर, ऑडियो क्लियर है। अगर आप चाहें तो मैं, आपकी वो प्रेजेंटेशन है मेरे पास, अगर यहाँ से चलानी हो तो मैं चला दूँ। हाँ ठीक है, मुझे बीच में 2 छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, वो भी चलानी है। ठीक। अभी सलमान आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जी। आप शेयर कर लेते हैं। तो जो भी रिसाइकल प्लास्टिक था वो इन कबाड़ी वालों के माध्यम से और हमारे कचरा बीनने वाले समुदाय के माध्यम से वो प्लास्टिक कलेक्ट होके आता था और रिसाइकल हो जाता। लेकिन जैसे ही नियम बने और नियम के बाद 20 माइक्रोन की जो प्लास्टिक थी, इस पर शासन द्वारा, केंद्र शासन द्वारा बैन लगाने से स्थिति जो थी वो खराब हो गई। और हर जगह पर, भोपाल और भोपाल के जो हम दूसरे शहरों में काम कर रहे थे, कि जो हमारे खाली प्लॉट थे, हमारे गार्डन थे, हमारी जो वाटर बॉडीज थी, हर जगह ये पॉलिथीन, कैरी बैग्स और नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक देखने को मिलता था। उसी समय पे भोपाल में हैवी रेनफॉल हुआ। उस हैवी रेनफॉल के कारण जो भी निचली बस्तियां थी, वो बस्तियां जो थी वो जलमग्न हो गई। और उन जलमग्न होने का जो रीजन था वो भी यही पॉलिथीन था। इस पॉलिथीन ने जो भी वाटर बॉडीज थी या जो भी सीवेज सिस्टम था उसको अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण ये प्लास्टिक वहां पर फंसा और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भोपाल में जनहानि हुई। और भी आपने पिछले 4 साल पहले बैंगलोर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कि वो बैंगलोर भी लगभग 3 से 4 दिन तक जो था पानी के अंदर रहा, जलमग्न रहा। उसका भी मेन रीजन यही था कि जो वन यूज प्लास्टिक है या जो कैरी बैग्स हैं या जो कप्स हैं, ये बह बहकर या नालों में डालने से इस तरह की समस्या क्रिएट हुई। साथ ही जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से इस प्लास्टिक को अनजाने में ही जला दिया जाता है। और आप देखते होंगे कि आज भी हमारा जो रूरल एरिया है, यहाँ पर 80% कचरे को आज भी जलाया जा रहा है और जलाकर उसको समाप्त किया जा रहा है। लेकिन इसमें से जो डाइऑक्सिन और जो फ्यूरॉन और जो जहरीली गैसेस निकल रही है, उन गैसेस से पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। अन्य को प्रकार की बीमारियां जो थी वो इस जहरीली गैस के कारण हो रही थी। और आज जो WHO का जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी कहा गया है कि इस तरह से जो प्लास्टिक जलाने से जो फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन जो निकलता है, उससे महिलाओं के अंदर प्रजनन की क्षमता कम हो रही है, साथ ही पुरुषों पर भी इसके गहरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और आज इसी कारणवश माननीय NGT ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। और इन कड़े नियमों के अनुपालन में जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, उन सब पर EPR नियम के अंतर्गत बाध्यता बनाई गई है कि वो जो भी प्लास्टिक जनरेट करेंगे, उतना प्लास्टिक उनको मार्केट से या बाजारों से या शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा करवाकर उसका वैज्ञानिक निष्पादन कराना होगा, जिससे कि ये प्लास्टिक का व्यवस्थित कलेक्शन हो और इसका साइंटिफिक डिस्पोजल। नियम 2008 के अंदर बनाए गए, फिर 2011 के अंदर नियम बनाए गए, फिर 2016 के अंदर नियम बनाए गए, और अभी 15 दिन पहले इन्हीं नियमों के अंदर संशोधन करके नई SOP जो है भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। और उसके परिपालन के अंदर सारा काम जो है वो सुनिश्चित तौर पे आगे किया जा रहा है। अब भोपाल मॉडल की शुरुआत हम लोगों ने वर्ष 2005 और 6 में की थी, कि जो भी प्लास्टिक कचरा था उसको कलेक्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कचरा बीनने वाले बैन होने के बाद सिर्फ जो रिसाइकल मटेरियल था, जो मोटे गेज का प्लास्टिक था, LD, PP, PVC, इस तरह का ही प्लास्टिक कलेक्ट करते थे, बाकी प्लास्टिक वो कलेक्ट नहीं करते थे, जिसके कारण ये प्लास्टिक जो था, बाकी प्लास्टिक जो था वहीं पर रह जाता था और अनजाने में जलाने से या इसको फेंकने से कई तरह की समस्याएं क्रिएट हो रही थी। तो इस प्लास्टिक का वैज्ञानिक निष्पादन हो, साथ ही इससे कचरा बीनने वाले जो कम्युनिटी है उनको
व्यवस्थित रोजगार मिल सके, उसी और काम करते हुए सार्थक संस्था ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रैक पिकर्स अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जो भी कचरा बीनने वाले हैं इनको सम्मानजनक रोजगार मिले, और जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है, चाहे वो 20 माइक्रोन से नीचे का हो, चाहे 20 माइक्रोन से ऊपर का हो, ये पूरा कलेक्ट हो और कलेक्ट होके इसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो। तो इसके लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहभागिता की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल, इंदौर और अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर इस परियोजना की शुरुआत की कि जो भी शहरी क्षेत्र के अंदर कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स हैं उनको हम रोजगार दें। तो इसके लिए हम लोगों ने सर्वप्रथम भोपाल के अंदर एक सेंसस किया और सेंसस कर उन सारे कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स, वेस्ट पिकर को हम लोगों ने इकट्ठा करके उनका एक सर्वेक्षण किया और उनको नगर निगम के साथ एनरोल करने की एक व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे कि अर्बन बॉडी में जितने भी कचरा बीनने वाले या इन पर डिपेंड जो फैमिलीज हैं उनका एक सर्वे किया जाए और सर्वे करके इनको इन अर्बन लोकल बॉडी से जोड़ा जाए। तो जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो भी शहरी जनसंख्या होती है, इस शहरी जनसंख्या का 2% भाग ये कचरा बीनने वाले या कचरा बीनने पर काम करने वाली डिपेंड फैमिलीज। तो इन्हीं 2% जनसंख्या को हमने टारगेट किया और अपना लक्ष्य बनाते हुए इन्हीं पर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि नगरीय निकायों में आज भी तो ये कचरा बीनने वालों को एक सम्मानजनक रोजगार दें। अब एक पीपीटी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बनाई गई थी, उस पीपीटी के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट पर मैं प्रकाश डालूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ जितने भी यूथ हैं, जितने भी नए एंटरप्रेनर हैं जो कि इस सेक्टर में करना चाहते हैं, वो इस मॉडल के माध्यम से अपने नगरीय निकायों के अंदर या अपने रूरल एरियाज के अंदर, अपनी पंचायतों के अंदर ये काम को करें, जिससे कि वहां का वेस्ट जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो भी मैनेज हो। साथ ही इसमें जो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, जो कचरा बीनने वाले उस एरिया के हैं, उनको भी रोजगार मिल सके। साथ ही जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल जो संचालित किया जा रहा है, उससे भी इन लोकल बॉडीज को सपोर्ट मिलेगा और आपका शहर और आपका ग्राम, आपकी पंचायत भी स्वच्छता के मापदंडों पर बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। साथ ही जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण के अंदर भी आपका पंचायत या आपकी अर्बन लोकल बॉडी वो बेहतर परफॉर्म करते हुए शीर्ष पर आएगी और अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जितने भी शहरी क्षेत्रों के अंदर शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को लागू किया था, आज वो सभी शहर स्वच्छता की श्रेणी के अंदर अग्रणी हैं। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो 100 सबसे स्वच्छ शहर हैं, या ये कहें कि भारत के जो 100 सबसे स्वच्छ शहर हैं, उसमें लगभग 34 शहर मध्य प्रदेश के हैं। तो एक ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है कि यहाँ के जो शहर हैं, यहाँ पर कचरा प्रबंधन का काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया। साथ ही इंदौर नगर निगम हमारा जो है देश का सबसे स्वच्छ नगर निगम है, यहाँ भी हमारी ये परियोजना ने काम किया है और कचरा बीनने वालों को यहाँ भी इन्वॉल्व करके हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही भोपाल और दूसरे शहर भी जो हैं स्वच्छता की रैंकिंग पर बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और भोपाल भी जो है इंडिया का बेस्ट क्लीनेस्ट कैपिटल अभी अनाउंस हुआ है।
तो कचरे के जो काम हो रहे हैं या प्लास्टिक कचरे का जो एक मॉडल जो भोपाल मॉडल के नाम से क्रिएट किया गया है, इरफान साहब ने बहुत ही विस्तार से उस मॉडल के बारे में बताया है। और मेरा आज इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आज इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आप ऐसे युवाओं को तैयार करें, ऐसे युवतियों को तैयार करें कि जो अपना कैरियर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं और वो बनाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है कि जो दिन ब दिन इसकी क्वांटिटी बढ़ना है, क्योंकि हम जिस तरह से मार्केट फूड पर डिपेंड होते जा रहे हैं, इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में वेस्ट में जितनी संभावनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और सेक्टर के अंदर इतनी संभावनाएं हैं। और सीपेट इसमें एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और युवाओं को तैयार कर कर ट्रेन कर कर इस ओर लेकर आ रहा है। और आज इस भोपाल मॉडल के जरिए कैसे आप अपनी नगरीय निकाय के अंदर या अपने पंचायत के अंदर इस काम को कर सकते हैं, उसके संबंध में एक भोपाल मॉडल को कैसे आपको रेप्लिकेट करना है या कैसे उसको वहां पर लागू कराना है, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक प्रेजेंटेशन में आना चाहिए ना। तो प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रैक पिकर्स उत्थान परियोजना की हम लोगों ने शुरुआत वर्ष 2006 और 2007 में की। और ये एक ऐसा मॉडल था कि जो कि शून्य बजट था। मैं आपको इस शून्य बजट के बारे में इसलिए बताना चाहूंगा कि आज जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के सेक्टर में हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में हो, चाहे वो बायोमेडिकल के सेक्टर में हो, चाहे वो ई वेस्ट के सेक्टर में हो, आप कुछ भी नया काम करना जब शुरू करते हैं तो उसके लिए एक बड़े बजट की जरूरत होती है, बड़े वित्तीय मदद की जरूरत होती है। तो हमारा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट था कि हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जो कि शून्य बजट हो और इसके अंदर किसी डोनर की या गवर्नमेंट फंड की हमें जरूरत ना पड़े। तो हम लोगों ने शून्य बजट परियोजना की परिकल्पना करी और इसके अंदर हमें नगर निगम भोपाल और हमारे यहाँ के आवास एवं पर्यावरण विभाग, साथ ही मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमें सपोर्ट किया। और 2011 में यूएनडीपी भी हमारे साथ कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट में जुड़ा। हालांकि यूएनडीपी ने बाद में इस भोपाल मॉडल को अडॉप्ट करते हुए भारत के कई शहरों के अंदर रेप्लिकेट किया है और आज वो भोपाल मॉडल को ही आधार मान के आगे काम कर रहे हैं। साथ में इसमें सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है उसने हमको टेक्निकल सपोर्ट करते हुए जो भी हमारा लिटरेचर था या हमारे जो ट्रेनिंग मैनुअल थे या हमारा जो रैक पिकर्स का स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें किस किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे उनको बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके उनको
स्किल डेवलप करके बेहतर तरीके से उस काम को कर सकें, इसमें उसने हमें मदद की। और हम लोगों ने सार्थक सामुदायिक विकास जन कल्याण संस्था के माध्यम से एक संस्था बनाई है, और इस संस्था के जो बोर्ड मेंबर हैं उसमें भी कचरा बीनने वाले परिवारों के ही सदस्य हैं। तो एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए एक संस्था की शुरुआत की गई, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मॉडल हम लोगों ने वर्ष 2006-07 के अंदर शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सार्थक संस्था है, एक ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए एनजीओ है, और ये संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कचरा बीनने वालों को सम्मानजनक रोजगार देना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम कचरा फेंकते हैं, हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से एक जो कम्युनिटी अपने काम की चीजों को निकालती है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, जिन्हें हम कचरा बीनने वाला, कचरा चुनने वाला, कचरे का काम करने वाला या गंदा काम करने वाला, अनेकों इस तरह के नामों से पुकारते हैं। लेकिन साथियों, हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से जो कम्युनिटी अपने काम की चीजों को चुनती है और पर्यावरण का संरक्षण तो करती है, साथ ही प्लास्टिक और वेस्ट का भी साइंटिफिक डिस्पोजल करने में सहयोग करती है, इस कम्युनिटी की तरफ कभी सरकार का ध्यान नहीं गया। तो हमारा इस परियोजना के माध्यम से यही उद्देश्य था कि हम इस कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे अवसर उपलब्ध कराएं और उनके सामने प्लास्टिक से स्वरोजगार का एक मौका दें। और मुझे आज इस मंच के माध्यम से बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे इस परियोजना का जो टैगलाइन था, उस टैगलाइन के जो हमारी जो प्रेरणा के स्रोत थे वो थे आदरणीय राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख। उनका ये कथन कि मैं अपने लिए नहीं हूं, अपनों के लिए हूं, अपने वो हैं जो दरिद्र एवं उपेक्षित है। तो उन्हीं के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से हम लोगों ने इस संस्था की स्थापना करी और इस पर काम करना शुरू किया। नेक्स्ट, यहाँ चेंज करिए। तो बताइए। सर, अगर वहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है शेयर करने में, मैं कर दूंगा, मेरे पास है प्रेजेंटेशन। आप कर दीजिए मीर साहब शेयर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद में। इस तरह से ये संस्था की स्थापना की गई, और इस संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि कचरा बीनने वालों को हम सम्मानजनक रोजगार दे पाए और उनको बेहतर तरीके से हम इस काम में करें। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी हमारा जो कचरा जिस तरह का निकलता है, आपने देखा होगा कि पहले जो कचरा हुआ करता था वो एक ही तरह का कचरा था कि सारे कचरे को मिक्स कर दिया जाता था। लेकिन आज हर कचरे के अलग अलग नियम बने हुए, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो, चाहे आपका गीला कचरा हो, हर तरह के कचरे को अब अलग अलग करके बात की गई है। लेकिन हमने उस समय पर सिर्फ प्लास्टिक कचरे को ही ध्यान में रखते हुए काम को किया, क्योंकि प्लास्टिक कचरे की जो समस्या है उस समय पे वो ही सबसे बड़ी समस्या थी जो आज भी विद्यमान है। क्योंकि जो भी कचरे को मिक्स करके हम फेंकते हैं, उस कचरे में से जो प्लास्टिक जाता है, वो प्लास्टिक एक इस पूरे कचरे के मिक्स होकर जब टंचिंग ग्राउंड पे या हमारे जो भी ढलान वाले क्षेत्र में वहां फेंका जाता है, तो इस कचरे के अंदर जो प्लास्टिक है वो एक लेयरिंग का काम करती है, और उसमें जो कचरे के अंदर जो एरोबिक प्रोसेस होना चाहिए, जो कचरे के सड़ने की जो प्रक्रिया होना चाहिए, वो बंद हो जाती है। इसी कारण हम लोगों ने कचरे का जो था, कचरे में से प्लास्टिक को हम लोगों ने चुना और प्लास्टिक कचरे पर ही काम करना शुरू किया। नेक्स्ट। क्योंकि जो आंकड़े आप लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन
प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने भोपाल में जब 2006-07 के अंदर इस काम को शुरू किया था, तो उस समय पर भोपाल में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 250 ग्राम कचरा प्रोड्यूस करता था, लेकिन 2020 आते आते ये कचरा जो था 450 ग्राम हो गया। तो इस तरह से कचरे की जो मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, वो भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अनेक समस्याएं निकल कर आएंगी। इसके अलावा जो मैंने बताया कि ये कचरे का सही तरीके से कलेक्शन मैकेनिज्म ना होने से भी समस्याएं बढ़ी, साथ ही अनजाने के अंदर ही इस कचरे को जलाने से जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह रही, और जिससे क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या क्रिएट हुई है वो इसके अंदर एक मुख्य अपना रोल अदा कर रही है। तो इस तरह से जो मेजर इश्यूज थे कचरे को लेके, हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करते करके उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया, और उसी एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग काम करना भोपाल मॉडल के माध्यम से शुरू हुआ। नेक्स्ट, मोबाइल चला। जो 3 तरह के कचरे अर्बन एरिया में या रूरल एरिया के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, पहला कचरा वो है जो हमारा गीला कचरा हम जिसको कहते हैं, जिसमें से रसोई का कचरा है, हमारा गार्डन वेस्ट है, या वो खाने का वेस्ट जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता, उस कचरे को डिस्पोजल करके जिससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है, वो गीला कचरा। और दूसरा जो हमारा कचरा जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें प्लास्टिक आता है, हमारा पॉलीमर्स आता है, कपड़ा आता है, लेदर आता है, मेटल्स आते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और तीसरा कचरा जो हमारा है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट पे उस समय पे नियम नहीं थे, लेकिन आज जो है इस पर नियम बन चुके हैं और नियमों के हिसाब से काम हो रहा है। तो उस समय पे मूलतः ये 3 तरह के कचरे जो के निकलते थे। तो इन 3 तरह के कचरों में से हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे पे सर्वप्रथम काम करना शुरू किया, और आज हम सार्थक संस्था के माध्यम से 7 राज्यों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का भी काम कर रहे हैं। साथ ही जो गीला कचरा है इसको डिस्पोजल करके इसका कंपोस्ट बना के लगभग 14 तरह की तकनीक हम लोगों ने विकसित की है। इन तकनीकों के हिसाब से हम लोग कचरा बनाकर, कचरे का खाद बनाकर इसको भी सप्लाई कर रहे हैं। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है या जो हाजार्ड वेस्ट है, इस वेस्ट को भी जो उस शहरी क्षेत्र के अंदर जो फैसिलिटी है उसके माध्यम से इसको डिस्पोजल कर रहा है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, जो हमारी गौ माता है, इनकी भी मृत्यु का मुख्य कारण ये प्लास्टिक था। हम देखते हैं कि बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हम अपने रात का बचा हुआ खाना या हमारे घर की सब्जी एक पॉलिथीन कैरी बैग के अंदर रखकर गली मोहल्ले के मुहाने पर, कोने पर रखते हैं कि गौ माता आएंगी और इसको खाएंगी, इससे हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन साथियों, हम पुण्य नहीं, ये पाप का कार्य करते हैं। अन्य भोपाल में हमने देखा 2007-08 के अंदर कि प्रतिदिन लगभग 15 से 10 गायों की मृत्यु सिर्फ पॉलिथीन खाने से हो रही है। ये एक जो दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक गाय के आमाशय में से 20 से 22 किलो की गांठें निकली। और मैं 2 वर्ष पहले पटना में था, वहां पर मैंने देखा कि एक गाय के आमाशय में 84 किलो पॉलिथीन की गांठें निकली। तो अनजाने में ही ये पशु इन पॉलिथीन को खाने से काल के गाल में समा जाते हैं, और इससे कई तरह की समस्याएं होती हैं। साथ ही जो सीवेज सिस्टम है कॉर्पोरेशंस का, अर्बन लोकल बॉडीज का, उसके चोक होने का कारण भी ये प्लास्टिक ही है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट और इस प्लास्टिक का सही तरह से कलेक्शन ना होने के कारण ये प्लास्टिक हमारी नालियों के अंदर, नालों के अंदर जाकर इस पानी को ब्लॉक कर देता है, और जिससे कि वर्षा में ये पानी जो है हमारे बस्तियों के अंदर, घरों में भर जाता है। नगर निगम का लगभग 40% राशि इन नालों को साफ करने में लगती है। तो ये वित्तीय जो समस्याएं अर्बन लोकल बॉडी के सामने जो इस प्लास्टिक को लेकर आई वो आई। इसके अलावा जो जलाने से, प्लास्टिक के जलाने से जो जहरीली गैसेस आ रही हैं, वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में हम लोगों ने इसमें इंगित की, और हम लोगों ने विभिन्न विभागों के माध्यम से, शासन के अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से जो भी अध्ययन हो सकते थे उन अध्ययनों को किया, और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरे प्लान ऑफ एक्शन को हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट,
जो एक आकलन जो हम लोगों ने अलग अलग अपने जिन जिन शहरों के अंदर काम किया, जो मैंने शुरू में बताया था कि जब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो उस समय पे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 250 ग्राम कचरा उत्सर्जित करता था, जो कि आज बढ़ के लगभग 450 ग्राम हो गया। कोई जो मेट्रो सिटीज है हमारी, वहां तो लगभग ये 500 ग्राम के फिगर्स को भी पार कर गया है, और 2025 आते आते ये फिगर्स और बढ़ेगा। तो क्वांटिटी कचरे की दिन ब दिन बढ़ती गई, और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जहां जहां काम नहीं हुआ था वहां पर इसी प्रकार के पहाड़ बनते गए। भोपाल में लगभग 23 एकड़ का एक कचरे का पहाड़ बन गया, क्योंकि जिसमें लगभग 20% प्लास्टिक था, और इस प्लास्टिक के कारण ये बड़े बड़े पहाड़ बने। चाहे आप दिल्ली में देख लें, मुंबई में देख लें, लखनऊ में देख लें, जितने बड़ी सिटीज हैं वहां पर आपको एक कचरे के बड़े बड़े पहाड़ दिख जाएंगे, क्योंकि अब स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इनके रिमेडिएशंस का काम हो रहा है, इनके डिस्पोजल का काम हो रहा है, और अब ये पहाड़ जो है समाप्त होना शुरू हुए। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई जगहों पर आपको ये प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ आपको दिख जाएंगे, और ये हजारों मेट्रिक टन प्लास्टिक अभी भी धरती माँ की कोख में पड़ा हुआ है, और हमारे मिट्टी को, हमारी उर्वरक मिट्टी को ये प्रदूषित कर रहा है, जिससे कि अनेकों तरह की समस्याएं निकल कर आ रही हैं। अगर इस प्लास्टिक का सही तरीके से कलेक्शन मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, और इस काम को करने में जो कम्युनिटी, जो वर्ग, जो समुदाय इस काम को कर रहा है, अगर उसको हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो इस समस्या का हल निकल जाएगा। यही सुझाव हम लोगों ने भारत सरकार के सामने रखे, स्वच्छ भारत मिशन के सामने रखे, और आज मुझे बड़ी ही प्रशंसा है इस बात को कहते हुए कि स्वच्छ भारत मिशन के उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी थे, मिशन डायरेक्टर थे, श्री वीके जिंदल साहब, उन्होंने भोपाल मॉडल को गहराई से अध्ययन किया, और इसके जो ऐसे इश्यूज थे कि जिनको कि स्वच्छता सर्वेक्षण में या स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में लागू किए जा सकते थे, उन्होंने लागू किया। मेरा उनसे अनुरोध था कि जितने भी शहरों के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, उस शहरों में जो कचरा बीनने वाले कम्युनिटी है, उनको आप नगर निगमों के साथ जोड़ दीजिए। उससे उन कचरा बीनने वालों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही जो प्लास्टिक नगर निगम के कर्मचारी या अर्बन लोकल बॉडीज के कर्मचारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा प्लास्टिक इनके माध्यम से इकट्ठा हो जाएगा, इनको रोजगार मिल जाएगा, और शहरी क्षेत्र का जो भी प्लास्टिक कचरा है वो कलेक्ट होके साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए चला जाएगा। उनको ये आइडिया पसंद आया, और उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर हर काम के अंक होते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन के नंबर हैं, उसके फिर डिस्पोजल के नंबर हैं, फिर पेंचिंग ग्राउंड को डेवलप करने के नंबर हैं, पब्लिक फीडबैक के नंबर है, अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारे नंबरों का एक खेल जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर है वो संचालित है। तो हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में जिस भी अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने साथ अधिक से अधिक कचरा बीनने वाले परिवारों को जोड़ा है, तो उसके अंक का निर्धारण हुआ, और जिन जिन अर्बन लोकल बॉडीज ने मैक्सिमम उनकी शहरी क्षेत्र में काम करने वाले कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़ा, उनको उसके अंदर अंक दिए गए। और ये अंक का खेल ऐसा चला कि आज लगभग 5000 शहरों के अंदर इन कचरा बीनने वालों को भोपाल मॉडल के अनुरूप सर्वेक्षण करके नगर निगमों में जोड़ा गया है, और कचरा प्रबंधन की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें अपने साथ जोड़ा गया है। जिन कचरा बीनने वालों की इनकम पहले 60 से 70 रुपए थी, आज वो इनकम बढ़कर लगभग 400 से 500 रुपए हो गई, और उनका रोजगार इससे चल रहा है। मैं बहुत ही गर्व के साथ इस बात को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष लगभग 5 लाख कचरा बीनने वालों को इस स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से रोजगार मिला, और ये 5 लाख कचरा बीनने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से नगरीय निकायों के साथ जुड़कर कचरा प्रबंधन की अलग को कम्युनिटी तक लेकर जा रहे हैं, और कचरे को इकट्ठा करने में नगरीय निकायों का सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि नगरीय निकायों के अंदर जो कर्मचारियों की कमी थी, या उनके पास जो सफाई कर्मचारियों की कमी थी, वो कर्मचारियों की कमी का भी बहुत हद तक जो है समाधान निकला है। भोपाल इंदौर के अंदर जितने भी
कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स थे, नगर निगम ने इन्हें अपने साथ जोड़ा और डोर टू डोर कलेक्शन में अपने साथ इनको जोड़ दिया है। ये सभी सफाई कर्मचारी आज सार्थक कर्मी के नाम से जाने जाते हैं और इनको नगर निगमों के अंदर सम्मानजनक रोजगार मिला है और इनको भी अन्य कर्मचारियों की तरह आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज किए गए हैं और अब ये समाज का एक हिस्सा होकर समाज को, शहर को, गांव को स्वच्छ रखने के अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने जो भोपाल का जो एक एक्शन प्लान तैयार किया था, उसी प्लान को आप लोग अपने शहरी क्षेत्रों के अंदर बनाकर लागू कर सकते हैं, क्योंकि हर शहरी क्षेत्र और हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छ भारत मिशन लागू है और वहां की अर्बन लोकल बॉडीज, वहां का सिस्टम ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़कर इस कचरा प्रबंधन के काम को वहां पर लागू कर पाए। क्योंकि जो भी नियम बने हैं, इन नियमों के मान से हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया जा चुका है। अब जो भी हमारे नए एंटरप्रेन्योर हैं या हमारे जो नए यूथ हैं या इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जो भी यूथ इस काम को अपने नगरीय निकाय में या अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर करना चाहते हैं, वो कैसे इस काम को करें। तो ये एक एक्शन प्लान मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि जो भी उस क्षेत्र की जनसंख्या है, हमने भोपाल के अंदर इस काम को किया था, 14 जोन थे, 70 वार्ड थे, वो लगभग 20 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए इस काम को शुरू किया था और फिर ये दूसरे शहरों के अंदर रेप्लिकेट हुआ। तो इसी तरह से एक्शन प्लान बना के आप अपने पंचायत, आप अपने ग्राम, आप अपने शहर के अंदर इस काम को नगर निगम या पंचायत के माध्यम से शुरू कर सकते हैं और किस तरह की यूनिट्स बनानी है, कैसे वहां पर काम करना है, कि पूरे एक्शन प्लान में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, ये पूरी एक कार्य योजना जो थी प्लास्टिक अपशिष्ट की, हम लोगों ने शुरू की और इसमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें तकनीकी सहयोग दिया। नेक्स्ट, हमारे इस जो एक्शन प्लान था या हमने जो कार्य योजना बनाई थी, इस कार्य योजना के मूलतः 5 हमने उद्देश्य रखे कि प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन, चाहे वो रिसाइकल प्लास्टिक हो, चाहे वो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक हो, जितनी भी कैटेगरी के अंदर प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उस शहर में, उस गांव के अंदर, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो। साथ ही उस शहर में, उस गांव के अंदर काम करने वाले रैक पिकर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करके उनकी भूमिका इसके अंदर बांधी जाए ताकि उनको इससे रोजगार मिले। तीसरा, जो भी प्लास्टिक कचरा है, उस प्लास्टिक कचरे से जो इनकम हो, वो इनकम इन कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स के पास जाए, जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा, हम किसी भी प्रोग्राम को सफल नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हम लोगों ने डिफरेंट कॉलोनियों के अंदर जाकर, वार्ड में जाकर, वहां पर ऐसे वर्गों को अपने साथ जोड़ा कि जो कचरा प्रबंधन के कामों में नगर निगम को सहयोग कर सके और घर घर से कचरा इकट्ठा करने की योजना को सफल बनाना कर सकें, जिससे कि कचरे का कलेक्शन मैकेनिज्म डेवलप। अगर कचरे को प्राइमरी लेवल पर ही आपने गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके इकट्ठा कर लिया, तो इस कचरे का डिस्पोजल संभव है। अदरवाइज नेक्स्ट कचरा अगर आप निकालते हैं तो इसको डिस्पोजल करना, इसको सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता इस काम में इसलिए है कि जब तक कि कम्युनिटी जुड़ेगी नहीं, तब तक कोई भी शासन की योजना सफल नहीं हो पाएगी। और मध्य प्रदेश या अन्य शहरी क्षेत्रों के अंदर जो ये मॉडल सफल हुआ है और आज स्वच्छ भारत मिशन जो कि एक शासकीय योजना से एक जन आंदोलनकारी योजना बनी है, उसका मुख्य कारण यही है कि ये योजना आज सरकार की ना होते हुए जनता की योजना बन गई और जनता का पार्टिसिपेशन और उनका सहयोग के कारण ही आज ये योजना इतनी सफल हुई है। और स्वतंत्र भारत के बाद मैं मानता हूं कि जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, उसमें ये जो स्वच्छ भारत मिशन योजना जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की थी, ये सबसे सफल परियोजना है, जो कि आज जनता की योजना ना, सरकार की योजना ना बनते हुए जनता जनार्दन की योजना बन गई। क्योंकि जन और तंत्र के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। मात्र 2% हमारे पास तंत्र है और 98% जन है। 2% लोग 98% को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। यदि ये 98% जनता
2% गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो हर तरह की सफलता हमें मिल सकती है। यही भोपाल, इंदौर और दूसरे शहरों के अंदर हुआ कि जनता ने सरकार को सहयोग करना शुरू किया। एक जनता और सरकार के बीच में एक सेतु बना और ये 2 और 98 का जो खेल था ये समाप्त हुआ और आज जैन और तंत्र ने मिलकर 100% इस कचरा प्रबंधन की योजना को लागू करने के अंदर सहयोग दिया और आज मध्य प्रदेश के 23 शहर जो हैं स्वच्छता की श्रेणी के अंदर अग्रणी हैं और भारत के अनेकों शहर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए समुदाय का पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो भी कचरे के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कमी लाना थी, क्योंकि कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है वो बहुत अधिक होता है। इसके लिए अलग अलग बनाए गए सेंटर बनाए गए, इनके माध्यम से कचरे को वार्ड में ही, जोन में ही अलग करके इसको कम किया जाए। इसके लिए गीले कचरे को अलग करके उसकी कंपोस्ट यूनिटें बनाई गई। लगभग 14 तरह की तकनीक इसमें विकसित की गई है और जो भी हमारा रिसाइकल मटेरियल है उसमें प्लास्टिक है, उसके अंदर पॉलीमर है, उसके अंदर पेपर है, उसमें मेटल है, उसमें ग्लास है, उसके अंदर अलग अलग तरह के जो भी मेटल्स हैं, इन सबको उसी लेवल पे अलग कर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ डेवलप की गई और इन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के माध्यम से ये पूरा कचरा जो है इकट्ठा होकर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को जाता है और इससे अनेकों प्रकार के स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। तो इन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरा ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। नेक्स्ट, हमने भोपाल नगर निगम के माध्यम से जो इस परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो अलग अलग प्लान तैयार किए थे, उसमें यह था कि जो भी प्लास्टिक हमारे शहर में निकलेगा उसका एक आकलन और उसका आकलन करके उसके कलेक्शन के लिए पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप हो। इसके लिए जगह जगह प्लास्टिक संग्रहण केंद्रों की स्थापना की गई। इसके अलावा जो भी रैक पिकर्स उस कम्युनिटी के अंदर है उनका एक सर्वेक्षण करके उनका एक डाटा तैयार किया गया और उनका ओरिएंटेशन और उनका स्किल डेवलप किया गया। इसके अलावा जो भी स्थानीय कबाड़ा व्यापारी हैं वहां उनको भी अपने साथ जोड़ने के लिए उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया। इसके लिए हमारा सीपेट भोपाल ने टेक्निकल सपोर्ट किया। इसके अलावा इस प्लास्टिक जो प्लास्टिक को तो रिसाइकल करना आसान था, लेकिन जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक था, इस प्लास्टिक का डिस्पोजल कैसे करें। तो इस प्लास्टिक के डिस्पोजल करने के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, 20 माइक्रोन से नीचे का था, इस प्लास्टिक को सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए 2007 में हम लोगों ने इस काम को शुरू किया और आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में इस प्लास्टिक को एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्रियों के टेम्परेचर पर इसको जलाया जाता है। क्योंकि जो भी प्लास्टिक को जलाया जाता है लगभग 1400 डिग्री टेम्परेचर पर अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो इसमें से फेरॉन और डाइऑक्सिन जो होगा 0 हो जाएगा और इस प्लास्टिक की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो कोयले से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्लास्टिक को जलाने का जो पहला प्रयोग था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ था और आज ये प्रयोग पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के अंदर ये सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्लास्टिक को भेजने के लिए एक दर तय की गई जिससे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज का भी कोयला बचे और उन्हें एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे प्लास्टिक मिले। इसके अलावा इसकी एक दर तैयार करके एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी अपने साथ जोड़ा गया क्योंकि इनके माध्यम से प्रचार प्रसार के अंदर हमें बहुत ही आसानियां हुई। तो इस तरह से पूरा एक प्लान तैयार किया गया। नेक्स्ट, ये पूरा एक सिस्टम अप्रोच भोपाल मॉडल था। हमने क्योंकि शुरू में गाइडलाइंस शासन द्वारा नहीं थी तो सर्वप्रथम हम लोगों ने भारत सरकार से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक पॉलिसी बनवाई 2006 और 8 के अंदर। उसके बाद राज्य शासनों द्वारा हम लोगों ने एक पूरी कार्य योजना इसके अंदर बनवाई और उनके अधीनस्थ जो भी रीजनल ऑफिसर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, जो नगरीय निकाय थी, उनको एक आदेश जारी करवा के इस तरह के प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए उनको अनुरोध किया। साथ ही फिर इन कचरा बीनने वालों का ओरिएंटेशन, इनके रैकपिकर्स के इनके कार्ड, इनको सार्थक करने का कार्ड दिलवाना, अलग अलग तरह से कलेक्शन करवाना, डोर टू डोर कलेक्शन में साइकिल रिक्शों को बढ़ावा देना, इस तरह के पूरे एक
पिरामिड के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारे कामों को किया गया, और इन्हीं स्टेप बाय स्टेप कामों को करने के बाद ये भोपाल मॉडल बना। और आज ये भोपाल मॉडल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी साथ बना रहा है, और अनेक लोगों को स्वरोजगार मुखी बनाने के साथ साथ प्लास्टिक कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। नेक्स्ट। जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी, उनके यहाँ भी सभी सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ये पूरा व्यवस्था की गई, और सार्थक का रोल, गवर्नमेंट का रोल क्या क्या था, वो सारा रोल इस मॉडल के माध्यम से डिफाइन किया गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसमें जो भी हमारे जो सार्थक कर्मी थे, जिनको हम पहले कचरा बीनने वाला, कचरा चुनने वाला बोलते थे, आज वो सार्थक कर्मियों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हर लेवल पर 40 आइडेंटिटी कार्ड हमने ग्रुप बना है, उनका एक फेडरेशन बनाया, और ये ग्रुप्स के माध्यम से इनकी इनकम जनरेट होना शुरू हुई। इसके अलावा इनके अंदर अवेयरनेस, इनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके बाद क्लस्टर फॉर्मेशन हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि होता यह था कि जो भी कचरा बीनने वाला पहले कचरे के ढेर पर पहुंचता था, उसको अधिक कचरा मिलता था, और जो बाद में आता था उसको कम कचरा मिलता था, जिसकी वजह से समस्याएं आती थी, वो चोरी और दूसरे कामों के अंदर जाते थे। हम लोगों ने वार्ड लेवल पे 300-300, 400-400 घर इन कचरा बीनने वाले सार्थक कर्मियों को अलॉट किए, और क्लस्टर अप्रोच सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा पूरा इसका एक टेक्निकली हम लोगों ने ऐप बनाते हुए इसका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, इसका इवैल्यूएशन सिस्टम पूरा डेवलप किया, जिससे कि पूरा डोर टू डोर कलेक्शन से लेके कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ, उसका पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप हो, और ऐप के माध्यम से ये पूरा कचरे का जो है डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अलग अलग लेवल पे जो कि गीला कचरा है उसको अलग करने के लिए, सूखा कचरा अलग करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, और टॉक शो, बच्चों को कॉम्पिटिशंस, और जो भी वहां पर कंपोस्ट इकाइयां डेवलप हो सकती थी, वो इकाइयां डेवलप करने के लिए वहां पर काम किया गया। और आज भोपाल के अंदर लगभग 20% गीला कचरा जो है इंदौर भोपाल के अंदर, वो ऑन स्पॉट ही डिकम्पोस्ट होकर उसका साइंटिफिक डिस्पोजल करके उसकी जो है कंपोस्ट बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और सफलतापूर्वक ये काम भी चल रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसके लिए हम लोगों ने जिस कम्युनिटी के अंदर भी गए हैं, वहां के लिए हम लोगों ने अलग अलग आईसी मटेरियल, जागरूकता कार्यक्रम के लिए मटेरियल डेवलप किया है, अलग अलग नुक्कड़ नाटक बनाए, डोर टू डोर कलेक्शंस के लिए कैसी मीटिंग्स हो, कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, वो सिस्टम डेवलप किया। मीडिया की एडवोकेसी के लिए किस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, तो हर लेवल पर, चाहे वो रैक पिकर से लेके हायर लेवल अधिकारी तक के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग मैनुअल तैयार किए, और ट्रेनिंग मैनुअल के साथ साथ उनके लिए लिटरेचर तैयार किया, और इस लिटरेचर के माध्यम से इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया गया। जिस कम्युनिटी में भी आप काम करें, जब तक कि आपके पास मटेरियल नहीं होगा, आपके पास टेक्स्ट नहीं होगा, आपके पास ट्रेनिंग मैनुअल नहीं होंगे, काम करने में परेशानी आती है। तो इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग अलग लेवल पे पूरा ट्रेनिंग मैनुअल तैयार किया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते थे, उन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे सीपेट है, सीपेट ने भी रैकपिकर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और देश के कई शहरों के अंदर सीपेट के माध्यम से भी कचरा बीनने वाले रैकपिकर्स को प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग थी वो दी गई। और आज कई इंस्टीट्यूशंस, मैं क्योंकि जेएनयू के अंदर कोर्ट मेंबर हूँ, वहां पर भी एक स्कूल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट खोला जा रहा है। पटना के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट खोला जा चुका है। इस तरह के कई तरह के इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने सपोर्ट किया, ताकि हर शहर के अंदर ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस टाइप के कोर्स संचालित किए जाएं, जिससे कि यूथ इसके अंदर आए और उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे भोपाल के अंदर। आप भी जब रैकपिकर से बात करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, उनमें एक डर होगा कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो कमाई है,
इसके अंदर सरकार या जो भी कम्युनिटी उनको अपने साथ जोड़ना चाहती है, उससे हमारा एकदम नहीं जोड़ते हैं। भोपाल में भी जब हम लोगों ने 1465 रैक्टिकस को अपने साथ जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया था, उसमें से मात्र 265 ही रैक्टिकस शुरू में हमारे साथ जुड़े थे। और उनका फिर जब स्किल डेवलप हुआ, उनके साथ हम लोगों ने जो गैप था वो कम किया और उनकी कम्युनिटी के साथ जाकर बातचीत शुरू करी। तो आज ये रैक्टिकस जो हैं पूरे के पूरे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 23,000 कचरा बीनने वाले आज इस प्रोग्राम से जुड़कर अपना रोजगार संचालित कर रहे हैं और सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पहले कचरा बीनने की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि सर पे कचरा लेकर जाते थे, उसमें अपने काम की चीजों को चुनते थे। आज वो व्यवस्था समाप्त हुई है और टिपर ऑटो और साइकिल रिक्शा के माध्यम से ये कलेक्शन हो रहा है और कचरा बीनने वालों को भी इसमें जोड़ लिया गया है, जिससे कि अब वो सर पे कचरे को ना ढोते हुए रिक्शा के माध्यम से लाते हैं और गली मोहल्लों पर जहां पर ये कचरे को छिटाई करते थे, आज वो छिटाई यहाँ ना होते हुए जो ट्रांसफर स्टेशन बने हैं या जो प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बने हैं उन्हीं पर ये प्लास्टिक को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने कबाड़ी की जो शॉप्स थी जितनी भी शहर के अंदर, उनको भी अपने साथ जोड़ा कि जो कबाड़ी वाले 50 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक नहीं लेते थे, आज वो कबाड़ी वाले भी इन रैक पिकर्स से या जो भी फैमिलीज इनके पास जाती हैं उनसे ये कबाड़ी वाले जो है इस प्लास्टिक को लेते हैं और उनका उसको पैसा देते हैं। शुरू में हम लोग 2 रुपए किलो इस प्लास्टिक को खरीदते थे और सीमेंट इंडस्ट्री को 3 रुपए किलो बेचते थे, लेकिन आज लगभग 5 रुपए किलो ये प्लास्टिक जो नॉन रिसाइकलेबल है ये सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा है और जाकर ये एज अल्टरनेटिव फील्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के लगभग 12 सीमेंट प्लांटों के अंदर इस तरह के प्लास्टिक को जलाने की कवायद 2008 में हम लोगों ने शुरू की थी। आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के सीमेंट प्लांटों के अंदर बोर्ड के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए और हर सीमेंट प्लांट ने अपने यहाँ प्लास्टिक को एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए व्यवस्थाएं की हैं और उनके लिंकर के अंदर चेंज करते हुए वो प्लास्टिक को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। और हमारी संस्था का लगभग 8 सीमेंट इंडस्ट्री के साथ अनुबंध है और इनको ये प्लास्टिक जो है सप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी सेंटर्स बना रखे हैं उन सेंटर्स पर हमारे रैक पिकर सार्थक कर्मी के माध्यम से ही इन सेंटर का संचालन होता है और ये प्लास्टिक को इकट्ठा करके सीमेंट प्लांट्स को भेजते हैं, जहां पर इस सीमेंट प्लांट्स के अंदर लगभग 1400 डिग्री टेम्परेचर पर इस प्लास्टिक को जलाया जाता है, जिससे कि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू मिलती है और कोयले की बचत होती है। साथ ही जो टारगेट्स इनके पास अल्टरनेटिव फ्यूल को यूज करने के हैं वो अचीव होते हैं और नगरीय निकाय से निकलने वाले प्लास्टिक का साइंटिफिक डिस्पोजल होता है। नेक्स्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप जो किया गया है, जगह जगह कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं, फिर इसकी बैल बनाकर लगभग 1-1 क्विंटल्स के हम लोग बैल बनाते हैं। फिर ये प्लास्टिक जब सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है तो वहां पर इसके शेडिंग करके फिर इसको शेडर के माध्यम से शेडिंग करके उनके लिंकर के अंदर फिट किया जाता है और पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम जो है इस पूरे प्रोजेक्ट की जाती है। पिछले 10 सालों के अंदर मैं कहूँगा 12 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाने का नहीं आया है और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है प्लास्टिक को जलाकर कोयले की बचत कर रही है। एसएससी कैमोर सीमेंट जो हमारे मध्य प्रदेश में, इसने पिछले 2 साल के अंदर लगभग 82 करोड़ रुपए का कोयला सिर्फ प्लास्टिक को जलाकर बचाया। इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा हुआ है और वो इस प्लास्टिक को जलाकर पर्यावरण का तो संरक्षण कर ही रहे हैं, साथ ही कोयले की बचत कर रहे हैं, उनकी वित्तीय भी बचत हो रही है और कचरा बीनने वालों को भी द्वारा जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उनको भी इससे रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट, हम लोग शुरू में इस प्लास्टिक को 1 रुपए 75 पैसे के मान से लेते थे, लेकिन आज ये दर जो है लगभग 5 रुपए किलो हो गई है। हम लोग 5 रुपए किलो प्लास्टिक जो है कचरा बीनने वालों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और लगभग 6-6.5 रुपए किलो जो है हम सीमेंट इंडस्ट्रीज को इसमें देते हैं। लेकिन आज सीमेंट इंडस्ट्रीज ने पेमेंट देना कम किया है, लेकिन ईपीआर के माध्यम से ये पेमेंट हम अब ब्रांड से ले रहे हैं और ये ब्रांड इस पेमेंट को दे रहे हैं और ये काम बहुत ही सफलतापूर्वक जो है दूसरे राज्यों के अंदर भी लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट,
इस तरह के कलेक्शन सेंटर जो हम लोगों ने बनाए थे, इन कलेक्शन सेंटरों पर बैलिंग मशीन, फटका मशीन और शेडर मशीन हम लोगों ने स्थापित की है। किस टाइप से ये वर्किंग करता है, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं 1-2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि ये कैसे एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट, ये बैलिंग मशीन हम लोगों ने स्थापित की है। इस बैलिंग मशीन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी कम हुई है, और जिस ट्रक के अंदर पहले हम 4 से 10 मैट्रिक टन प्लास्टिक भेजते थे, आज लगभग 16 से 22 मैट्रिक टन प्लास्टिक बैल बनकर व्यवस्थित तौर पर सीमेंट प्लांट को जाता है। नेक्स्ट, 3 चरणों के अंदर हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। सर्वप्रथम हम लोगों ने कचरा बीनने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया, फिर कलेक्शन सेंटरों की स्थापना की। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमने किए। साइकिल रिक्शा के माध्यम से कलेक्शन ये सिस्टम अप्रोच किया, और इन जब रैकपिकर्स की इनकम बढ़ गई तो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इनके बैंक्स के अंदर अकाउंट्स ओपन करवाए। साथ ही इनके बच्चे भी एजुकेशन फील्ड के अंदर आगे आए, तो वो बच्चे कचरे का काम ना करें, इसके लिए हम लोगों ने इवनिंग क्लासेस और बच्चों को राइट टू ऑल एजुकेशन स्कीम के तहत अलग अलग स्कूलों में इनके एडमिशंस कराए। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ये बच्चे भी आज समाज में कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, और इन बच्चों का भी जो परसेंटेज है लगभग 85 से 90 के बीच में आ रहा है। और इन्हीं कचरा बीनने वालों बच्चों फैमिलीज की एक बच्ची जो है अभी इंडियन जूनियर हॉकी टीम के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये बच्चे भी अब जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, और जिन कचरा बीनने वालों को हम कचरा चुनने वाला, कचरा बीनने वाला, कचरे का काम करने वाला बोलते थे, आज इनके बच्चे भी समाज में आगे से आगे आकर समाज को प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, और एजुकेशन के सेक्टर में, खेल के सेक्टर के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमने जो साइकिल रिक्शा डेवलप किया था, लगभग 14,000 की लागत से साइकिल रिक्शा डेवलप किया था, जो कि शुरुआत में हमने 5 साइकिल रिक्शों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था। आज भोपाल में लगभग 700 साइकिल रिक्शा हैं, और मध्य प्रदेश के अनेक शहरों के अंदर इन साइकिल रिक्शों के माध्यम से काम घर घर से इकट्ठा करने का जो प्रारंभ किया गया था, आज वो बहुत सारे शहरों के अंदर लागू किया जाए। नेक्स्ट, ये फुट रिक्शा हम लोगों ने डिजाइन किया था। एक हिस्से के अंदर गीला कचरा, एक के अंदर सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता है, और टंचिंग ग्राउंड पर या ट्रांसफर स्टेशन में ले जाकर इसको पुट सिस्टम से ही कचरे को नीचे कर दिया जाता, जिससे कि मैनुअली इस कचरे को टच ना करना पड़े। हर साइकिल रिक्शा पे हम लोगों ने 2 सफाई कर्मचारी सार्थक कर्मियों की नियुक्ति की है। ये 300 घरों के अंदर जाते हैं, और इन 300 घरों से कचरा इकट्ठा करके प्लास्टिक कचरा अलग करते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से एक मेल और एक फीमेल हर साइकिल रिक्शा पे हम लोगों ने अपॉइंट किया हुआ है, और आज ये नगर निगमों के माध्यम से सैलरीज भी ले रहे हैं, और इस कचरे में से जो प्लास्टिक निकलता है उसको निकाल के भी ये अपनी जीविका चला रहे हैं। नेक्स्ट, भोपाल में वर्ष 2008 में पहली बार कचरा बीनने वालों के फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए, और यही दिशा निर्देश भारत सरकार ने स्टेट राज्यों को दिए, और सभी राज्यों द्वारा जो है अब इन कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़कर इनके आइडेंटिटी कार्ड जारी कर इनके हेल्थ चेकअप कराकर इनको कचरा प्रबंधन की यूनिट से जोड़कर आज स्वरोजगार का जो अलग जगाई गई है। और स्वच्छ भारत मिशन में जब से इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया गया है, उसके बाद से हर शहरी क्षेत्र के अंदर कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़ा गया है, और उनको इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं। नेक्स्ट, ये जहां पर हमारे शुरू में ट्रांसफर स्टेशन नहीं बने थे, वहां पर इस टाइप के छोटे छोटे केंद्र बनाकर हम लोगों ने प्लास्टिक कलेक्शन का काम शुरू किया था। आज कई पंचायतों के अंदर भी इस टाइप के छोटे छोटे सेंटर बनवाकर आप लोग प्लास्टिक संग्रहण करके रखकर उसका प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कचरे को व्यवस्थित तौर पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रैम सिस्टम से कचरा ट्रांसफर करने की व्यवस्था की थी, उसका एक चित्र है। नेक्स्ट, जहां पर हम लोग बैलिंग मशीन स्थापित नहीं कर पाए जिन गांवों के अंदर, पंचायतों के अंदर, वहां पर हम लोगों ने मैनुअल बैलिंग मशीन स्थापित की है, और इस बैलिंग मशीन के माध्यम से उस कचरे को व्यवस्थित तौर पे इकट्ठा करके रखा जाता है, और फिर रिसाइकलिंग फैसिलिटी तक भेजा जाता है। नेक्स्ट, अब इस प्लास्टिक का इस्तेमाल जो हम की सीमेंट प्लांट में एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल करते थे, आज इस प्लास्टिक का उपयोग हम वर्ष 2010 से रोड निर्माण के अंदर भी कर रहे हैं, और रूरल रोड्स के अंदर केंद्र सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं
कि जो भी ग्रामीण रोड बनेंगे उसमें से 20% रोड अब प्लास्टिक से बनेंगे। मध्य प्रदेश इस काम के अंदर आगे है और लगभग 4,500 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर प्लास्टिक से रोड बनाई गई है। इस प्लास्टिक से रोड बनाने की खासियत ये है कि एक तो इसकी लागत भी लगभग 12% कम आती है डामर के रोड से, और इसकी जो लाइफ होती है वो आम रोडों से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। हम लोगों ने जहां जहां भी प्लास्टिक से रोड बनाए हैं आज वो रोड वैसे ही हैं, और एक सस्ता सुलभ लंबी अवधि तक चलने वाले रोडों का निर्माण इस परियोजना के अंतर्गत हुआ है। और इस पूरे प्लास्टिक को, जो कि 40 माइक्रोन से नीचे की जो कैरी बैग्स होते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक के 2.5 साइज के बारीक बारीक चिप्स बनाकर रोड निर्माण के अंदर उपयोग किए जाते हैं। और इसके लिए केंद्र द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और पूरी इंडियन रोड कांग्रेस के माध्यम से एक तकनीक सभी राज्यों को दी गई है। उस तकनीक से पहले रूरल रोड बनते थे, अब NHAI के रोड भी इस से बन रहे हैं। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसके विशेष अंक दिए गए हैं कि जिस नगरीय निकाय ने अपने प्लास्टिक से रोड बनाए हैं उनको इसके लिए विशेष अंक दिए गए हैं। तो अब सभी क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक से रोड बनाने का काम शुरू किया गया है और हमारे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, रेक्टिकस ग्रुप हैं, आज इस प्लास्टिक को शेडिंग कर रोड कंस्ट्रक्शन इकाइयों को, रोड कंस्ट्रक्शन निर्माण इकाइयों को और विभागों को सप्लाई करके सस्ते और सुलभ रोड निर्माण बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। साथ ही उस क्षेत्र से जो भी प्लास्टिक निकल रहा है जिसको हम सिविल इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज करवा देते, आज वो रोड निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, आप इस जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं जिससे कि ये लोगों तक इसका मैसेज जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस काम में हमारे साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट को देखने कई राज्यों के, यूपी, बिहार, अनेकों राज्यों के लोग प्रतिनिधिमंडल समय समय पर भोपाल, इंदौर आते हैं और आकर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और इसका अनुसरण करके अपने नगरीय क्षेत्र के अंदर लागू कर रहे हैं। अभी इस प्लास्टिक से हम लोगों ने कुछ नए नए उत्पाद बनाना भी शुरू किए हैं। हम लोगों ने सीपेट के टेक्निकल सहयोग से इस प्लास्टिक की एक शीट बनाई है जो कि वाटरप्रूफ शीट है। इस शीट को हमने बनाया है। इसके अलावा जो PVC जो सोल या पुराने शूज होते हैं, इससे हम लोग जो है साइकिल के पेडल, चेयर्स के शूज और टाइल बनाने का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। कई नए नए विकल्प हम लोगों ने इसके अंदर लागू किए हैं जिससे कि ग्रामीण या जो भी छोटे शहर है वहां से जो कचरा निकल रहा है प्लास्टिक, उसका लोकल लेवल पर ही डिस्पोजल किया जाए। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट और प्लास्टिक को मिलाकर पेवर ब्लॉक और टाइल बनाए हैं और अनेकों प्रकार के नए नए उत्पाद बनाने की छोटी छोटी यूनिट्स हम लोग प्लास्टिक से बनाने की शुरू कर दी हैं और इनसे हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा हुआ है और ये अपना रोजगार उससे संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है सराहा गया है। 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने वॉशिंगटन में इस भोपाल मॉडल का प्रेजेंटेशन 142 कंट्री के सामने कराया और इसका कई राज्यों और कई देशों ने इसका अनुसरण किया और आज भोपाल मॉडल भोपाल से निकलकर देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी अपनी साख जमा रहा है। और भारत सरकार द्वारा कई पॉलिसी बनाई गई है, चाहे वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 हो, 2011 हो, 2008 हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 हो, इन सभी नियमों के अंदर भोपाल मॉडल को अडॉप्ट किया गया है, नया रखा गया है, उसका लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट, जो पहले व्यवस्था सर पे कचरा ढोने की थी, अब ये धीरे धीरे समाप्त हो गई है और साइकिल रिक्शों के माध्यम से, टिपर ऑटो के माध्यम से अब ये कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और कचरा बीनने वाले रैक्टिकस है, इनका भी जो है सम्मान बढ़ा है और अब ये भी सम्मानजनक स्थिति के अंदर आए। नेक्स्ट, ये व्यवस्था थी पहले कचरे को अलग अलग चुनने की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है और ट्रांसफर स्टेशनों पर या जो भी मटेरियल रिकवरी सेंटर्स हैं वहां पर आकर इसका निष्पादन हो रहा है। जो भी हमारे ट्रक्स या रिसाइकलिंग सेंटर से हमारे जो मटेरियल जाता है रिसाइकलिंग के लिए, हम समय समय पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसको फ्लैग ऑफ कराते हैं, इससे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारे साथ बढ़े। नेक्स्ट,
जो भी साइकिल रिक्शा हमारे हैं, उन साइकिल रिक्शों का एक अवेयरनेस के पर्पज से हम लोग एक साइकिल रैली भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इन साइकिल रिक्शों के माध्यम से रैली कराने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग हमारे साथ जुड़े और कचरा और प्लास्टिक कचरे को जो एक बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। प्लास्टिक से तरह तरह की समस्याएं हैं। प्लास्टिक से समस्या हो सकती है, लेकिन ये प्लास्टिक नुकसानदेह नहीं है। यदि इस प्लास्टिक को व्यवस्थित तौर पे इकट्ठा किया जाए, इसका कलेक्शन मैकेनिज्म डेवलप किया जाए और इससे जो कम्युनिटी जुड़ी हुई है उस कम्युनिटी को इसमें जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पे प्लास्टिक जो है एक अच्छा पदार्थ है और इससे अनेकों प्रकार के नए नए विकल्प के तौर पे कई चीजें बनाई गई हैं और उन विकल्पों से इस प्लास्टिक का कलेक्शन करके डिस्पोजल किया जा रहा है, जिससे कि कचरे का जो कलेक्शन हो रहा है वो भी हो रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इस परियोजना को मिले हैं और कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में इस प्रोजेक्ट पर बनी हैं, जो कि YouTube पे आपको सार्थक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी, जिसको आप देखकर समझकर अपने क्षेत्रों में काम करने में आपको इन मूवीज के माध्यम से सपोर्ट मिलेगी। तो 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इस प्रोजेक्ट को मिले हैं। कई राज्यों के नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्थान मिला है और लगभग 335 के लगभग कई वर्कशॉप और सेमिनार हम लोग अलग अलग राज्यों के अंदर संचालित कर चुके हैं, जिससे कि कचरा प्रबंधन से संबंधित काम यूथ करें और अपना रोजगार इसके अंदर स्थापित करें। नेक्स्ट 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी भूमिका रही है हमारी इस प्रोजेक्ट को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के अंदर। तो जो भी आप काम करते हैं अपने राज्यों के अंदर, अपने शहर में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वहां पर आप मीडिया को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा किया गया नवाचार, आपके द्वारा किया गया काम लोगों तक पहुंचता है, फिर उसका फीडबैक मिलता है और लोगों तक आपके द्वारा किया गया काम पहुंचता है, तो उसकी एक साख बनती है, उसकी एक इमेज बनती है। वही कारण है कि मीडिया के माध्यम से आज ये प्रोजेक्ट भोपाल मॉडल के नाम से देशी नहीं विदेशों के अंदर भी क्रियान्वित हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो भोपाल में 5 वार्डों के माध्यम से जो हम लोगों ने काम शुरू किया था, आज ये पूरे देश के अंदर ये लागू हो रहा है और कई रिसाइकलिंग छोटी छोटी यूनिट्स डेवलप हुई हैं, जिसमें हम लोग साइकिल रिक्शा से लेकर साइकिल के रिक्शा के पेडल, शूज, अनेकों प्रकार के नए नए उत्पाद, चेयर्स, व्हील चेयर्स, डस्टबिन, बहुत सारे उपकरण प्लास्टिक के हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बना रहे हैं और बनाकर देख रहे हैं। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो आपके सामने प्रस्तुत है। पंद्रह साल से कचरा बीनना शुरुआत करा हूँ। 6 बजे से घर से निकलते हैं, पन्नी, कागज, प्लास्टिक, पुस्ते, कांच वगैरह ये सब पूरे टोटल सामान हम लोग उठाते हैं। पन्नी जो पड़ी रहती थी जो गंदी, वो उठा के हम लेते थे। व्यापारी लोग क्या बोलते थे, भाई गंदी पन्नी है, आधा वजन काटो, आधा वजन के पैसे हम लोगों को मिलेंगे। पहले लोग क्या बोलते थे, अब लोग सामान मत उठाओ, कॉलोनी में से बाहर निकल जाओ। फिर हमारा तो नगर निगम से जब बना हमारा, तो हमको कोई लोग ने मना नहीं करा। लोग बात बोलते आओ बीन के ले जाओ। जो रेवेन्यू मॉडल इसमें तैयार किया गया है उसमें रैक पिकर्स को इन्वॉल्व किया गया है। रैक पिकर्स को एनजीओस ने अलग अलग केंद्र स्थापित किए हैं और रैक पिकर्स का पंजीयन कराया गया है और उनके माध्यम से रैक पिकर से ये पॉलिथीन, इस तरह की प्लास्टिक क्रय की जाती है अलग अलग दरों पे। रैक पिकर्स की जो डेली इनकम हो रही थी वो दुगनी हुई है उसमें। नगर निगम में जाके हम पूरी पन्नी देते, हमारा कोई वजन काटती नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं काटता। ऐसे पॉलिथीन का प्रबंधन करने के लिए यूएनडीपी, जैफ, एसडीपी के माध्यम से हम लोगों ने परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कचरा बीनने वालों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही ऐसा पॉलिथीन जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, जिसको ना तो रिसाइकल किया जा सकता और ना ही स्टोर किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को एकत्र करके सड़क निर्माण और सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए हम इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। पेपर में मेरा बच्चा पढ़ा कि मम्मी तुम लोग ये पन्नी बीनते हैं ना,
पिसाती मशीन में पिसा के ये रोड में ये पन्नी डलाती है। तो इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जो एक अलग भोपाल से जगी थी, मेरा इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप भी अपने नगरीय निकायों के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर लोगों को अपने साथ जोड़ें और जोड़कर एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करें, क्योंकि आज के समय में कचरा हर जगह है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, यहाँ तक कि जो आदिवासी मंजरे टोले हैं वहां भी प्लास्टिक कचरा एक समस्या के तौर पर विद्यमान है। तो आप प्लास्टिक को एक व्यवसाय के तौर पर करना प्रारंभ करें, जिससे कि लोगों को तो रोजगार आप देंगे ही, आपको रोजगार मिलेगा ही, साथ ही आप पर्यावरण को संरक्षित करने में भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो मेरा आपके इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि प्लास्टिक एक बहुत ही काम की वस्तु है। इस प्लास्टिक को सरकारी नजरिए से ना देखते हुए इसको एक सकारात्मक नजरिए से आप देखें, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे विकल्प दिखेंगे, बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। और प्लास्टिक से आज अनेकों प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्योंकि अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो नए रूल्स आए हैं और जो अभी 15 दिन पहले जो मिनिस्ट्री ने जो एसओपी जारी की है, इस एसओपी के हिसाब से जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, इन सब पे ईपीआर नियम लागू है और ये ईपीआर के तहत एजेंसियों को अपॉइंट करके उनके माध्यम से प्लास्टिक को कलेक्ट करा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आज भी देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ईपीआर का काम चल रहा है। कई कंपनियां हैं जिन्होंने पीआरओ अपॉइंट किए हैं, उन पीआरओ के माध्यम से जो कागजी खेल चल रहा है कि उनके माध्यम से उस क्षेत्र से हजारों मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा करके उसका डिस्पोज किया जा चुका है। यदि आप लोग अपने शहरों के अंदर, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस काम को करते हैं तो नगरीय निकाय तो आपको सपोर्ट करेंगे ही, साथ ही ईपीआर के तहत ये ब्रांड भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो अनेकों ब्रांड हैं जो कि अच्छे युवकों को, अच्छे एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहे हैं कि वो इस काम को वहां पर कर सके। इसके लिए सार्थक संस्था आप जैसे युवाओं को सहयोग करने के लिए तैयार है। आपको किसी भी तरह का तकनीकी सहयोग चाहिए या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या आप हमारे मंच या हमारी संस्था के माध्यम से जुड़कर अपने शहरों के अंदर, अपने ग्रामों के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उस मॉडल से भी आप हमारे साथ जुड़कर इस काम को कर सकते हैं। बस हमारे काम का मुख्य उद्देश्य है कि कचरे का पूरा कलेक्शन हो, इसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो और जो भी डिपेंडेंट फैमिलीज इसके अंदर हैं उनको सम्मानजनक रोजगार मिले। और प्लास्टिक जो कि एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक समस्या के रूप में नहीं, इसको एक समाधान के तौर पर हम लोग सामने रखें और इससे अनेकों प्रकार के स्वरोजगार मुखी काम चलाएं, जिससे लोगों को तो रोजगार मिले, साथ ही हम अपने ग्राम और शहर को भी स्वच्छ बनाने में मदद करें और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध कराएं। सीपेट इसके अंदर बहुत बेहतर काम कर रहा है। ये इन्होंने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आम लोगों के लिए बनाए हैं और आज का जो ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में ये एक मील का पत्थर साबित होगी और अनेक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में, कचरा बीनने वालों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में, नगरीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के काम को करने में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट काम करने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना एक प्रस्तुतिकरण यहीं पर समाप्त करूंगा। जो भी आपके प्रश्न हो, उन प्रश्नों के माध्यम से जो आपकी जिज्ञासाएं हो वो आप पूछ सकते हैं या मुझको मेल कर सकते हैं, या हमारी जो साइट्स है उस साइट पर जाके इन फिल्मों के माध्यम से जो भी हमारा लिटरेचर है उसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आवश्यकता लगती है तो आप हमारी साइट पर जाकर हमारे ईमेल एड्रेस के माध्यम से हमारे कार्यालय की टीम से संपर्क करके जो भी आपको तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़े वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद इम्तियाज सर। हर बार जब भी आपको सुनते हैं वही नई ऊर्जा, वही नई एक इच्छा जगती है कि कब ऐसे घर घर तक ऐसे एफर्ट्स जो हैं, ऐसे प्रयास जाएं और कब हम इंदौर और भोपाल की तरह पूरे देश को स्वच्छ बनाएं और जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन है, एक उनका ड्रीम है, उसको हम पूरा करें। और खासकर जो प्लास्टिक के माध्यम से जो
मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उसका हम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हम मुकाबला करें और उसको एक जनमानस में तक पहुंचाए। यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है जब भी हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और क्योंकि इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी जगह पर बैठे हैं जो पूरा आगे का फ्यूचर जनरेशन हमारी जिनको बनानी है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये सारा जो आपका प्रयास है। और जो आपकी अच्छी सोच है वो उनको मार्गदर्शित करती रहेगी, उनको प्रेरित करती रहेगी कि वो आने वाली नस्लों को हमारी ऐसे तैयार करें जो आगे चल के इस मिशन को और इससे संबंधित सारे जो जुड़े हुए सवालात हैं, जो जुड़े हुए ग्राउंड वर्क है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, सीपेट की तरफ से और विशेष कर अपने व्यक्तिगत पर्सनली अपनी तरफ से आपका आभारी हूँ कि आपने आज इतना समय निकाला अपनी बिजी शेड्यूल से और हम लोगों को संबोधित किया और इतनी आसानी से जो इतना बड़ा कार्य जो आपका है, जिसके लिए मैं समझता हूँ आप जितनी भी सराहना हम करें, जितनी भी आपको आपकी तारीफ करें वो कम है। और खासकर इस वक्त जब पूरी दुनिया जूझ रही है वेस्ट मैनेजमेंट के सवाल से, और आपने इतना सरल और इतना सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करके उसको चला के दिखाया, हम सब की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसे मार्गदर्शन करते रहें, अच्छा काम करते रहें। आप खुश रहें और ऊपर वाला आपको सलामत रखे। और हमारे साथ ऐसे ही जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम जोड़ते रहेंगे। हमारे साथ इरफान खान साहब हैं जो he wants to ask a question, so I'll give him the mic. Sir, actually I have no question. I want to appreciate to sir. Basically, I really appreciate this kind of education for child, labor class child education. I really salute to him and his community also. I really appreciate, sir. This is the very biggest. This is the very biggest and very useful and very motivated to us also. कि सर चाइल्ड के लिए मतलब लेबर क्लास की चाइल्ड के लिए अगर एजुकेटेड की पॉलिसी, आई रियली सैल्यूट टू हिम सर एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रियली अमेजिंग, रियली आउटस्टैंडिंग सर। कहाँ लोग बात दूसरे के लिए, कहाँ मतलब गरीबों के बच्चे पढ़े सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Irfan sir, I don't know, you heard him, and we have him work in with these cities. We have seen him work and engage with these diasporas when we were visiting at different cities, whether it was in Allahabad, it was in how people came and just surrounded him and they had with Imtiaz Saab. And I wonder whether we will be ever able to in real life. And I have seen now excellent motivator, excellent person. We used to be together. We used to share accommodations on different locations, even in the hotel, but I'll not see him in the hotel. He'll be meeting people in the night. People will come to him. Every second of his time was occupied with different people across the social norms meeting him. I appreciate and thank Imtiaz Ali Sahab for his contribution to the world and for his contribution today. Thank you so much. We'll be continuing the session.